Welcome back, students. Today I am going to discuss another data structure, that is stack. So, as you know, what is a data structure? It is organization of data elements in computer's memory plus allowed operation on that data elements. Okay. So, stack stack is an order list in which all insertions are made at one end, and deletion is also take place from the same end. एक ही सिरे से सारे इंसर्शंस होने हैं और उसी सिरे से सारा डिलीशंस होना है. So this end is called the top. So stack is an order list in which all insertions and deletions are made at one end, called the top element. It is also called the LIFO list, last in first out. जो भी आप सबसे लास्ट में इंसर्शन करते हैं वही सबसे पहले डिलीट होगा. So there are two important operations, the push operation and pop operation. So let us discuss the push operation. So there are 5 elements, A1, A2, A3, A4, A5, and I want to push one by one. So सबसे पहले मैं A1 को push करना चाहता हूँ अपने stack में. So definitely A1 आपका push होगा. So first A1 को हमने यहाँ पे push किया, and then A2, and then A3, A4, and then A5. So you cannot access the middle element. आप बीच के element को access नहीं कर सकते. Okay. Only topmost element को आप देख सकते हैं. आप topmost element को delete कर सकते हैं. Okay. So that's why this is called the LIFO operation, LIFO list. Okay. So another operation is a pop operation. So definitely आपका सबसे लास्ट में आपने कौन सा आइटम इंसर्ट किया, that is A5. तो A5 सबसे पहले डिलीट होगा. So A5 is deleted from your stack, and then A4. Right now the topmost element is A3, so that's why A3 delete होगा. आप इस वक्त topmost element A2 है, but A1 को आप नहीं delete कर सकते. A2 को पहले delete करेंगे तभी आप A1 तक पहुंच सकते हैं. So this is the operations on stack. Okay, so the last element to be inserted into the stack will be the first to be removed. In this way, stacks referred to as LIFO list. Okay. Now come to the abstract data type, stack as is abstract data type. So अभी हमने discussion किया था data structure of stack. It is organization of data elements in computer's memory plus allowed operations on that data elements. So there are 5 basic operations जो कि stack की functionality को define करते हैं. Okay, the first is a create stack. So whenever you call this function, at that moment a blank space, a blank stack will be created. आपका एक blank stack जो है वो create होगा उस moment के ऊपर. उसी के बाद आप push या pop operation कर सकते हैं. Create is the most important. Okay, the push operation. So there are two parameters. The first is the name of stack and second is a value. आप कौन सी stack में कौन सी value push कर रहे हैं. Okay, so insertion के लिए मेमोरी में पुश करने के लिए आप सेकेंड ऑपरेशंस का यूज करेंगे. एंड द थर्ड इज अ पॉप ऑपरेशन. सो इट विल डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम योर स्टैक. जो भी स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है आपको डिलीट करना है तो पॉप ऑपरेशन को कॉल करेंगे. पीप, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पीक ऑपरेशन. ओके, व्हिच रिटर्न्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट. ये सिर्फ व्यू करता है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, उसको रिटर्न कर सकता है. And another is a boolean operation is empty. Stack is empty or not. So it will return true if stack is empty, otherwise it will return false. इसी तरीके से एक is full operations भी रहता है, that is also boolean. If stack is full, that will return true, otherwise that will return false. Now the applications of stacks, there are several applications. The first application is local variable declaration. यहाँ पे stack का use होता है. Second is पास पैरामीटर बिटवीन फंक्शंस. ओके, जब आप फंक्शंस में पैरामीटर पास करते हैं वहां पे भी हम इसकी एप्लीकेशन. स्टैक्स आर आल्सो यूज्ड इन रिकर्जन. इट मींस फंक्शन कॉलिंग. एंड प्रोग्राम यूजेस अ सब प्रोग्राम. दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन. एक्सप्रेशन इवेल्युएशन. ओके, आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है या इनफिक्स एक्सप्रेशन है, जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उनको हम इवेल्युएट किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ
स्टैक्स। ओके, सो इनफिक्स एक्सप्रेशन में 2 स्टैक का यूज करते हैं, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में हम सिर्फ एक ही स्टैक का यूज करते हैं। पॉलिश नोटेशन, कंप्यूटर की मेमोरी में हम एक्सप्रेशन को, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को फीड कैसे करेंगे, उसके बाद ही हम इवेलुएट कर पाएंगे। सो पॉलिश नोटेशन इज अनदर area. Okay, so these are the applications of stack. Now the implementation of stack. So stack can be implemented by 2 ways. The first is a static implementation, another one is a dynamic implementation. Static implementation is done by with the help of array. Okay, but the disadvantage is this कि आपको कंपाइलेशन से पहले एरे का साइज बताना होगा, इट मींस स्टैक का साइज बताना होगा। और जब स्टैक एरे में सारे एलिमेंट्स आप डाल चुके हैं, स्टैक में सारे एलिमेंट्स अगर आप डाल चुके हैं, उसके बाद अगर आप कुछ इंसर्शन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली ओवरफ्लो का कंडीशन राइज होगा। ओके ओके, इस डायनामिक इंप्लीमेंटेशन में आपको जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो रन टाइम पे प्रोवाइड हो सकती है विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन। So it is the ideal implementation of stack. Okay, so it can be implemented using pointer, structure and malloc function. Now dynamic implementation को हम डिस्कस करेंगे जब linear linked list के बारे में आपको समझाएंगे। Now first the static implementation of stack, array की help से हम कैसे implement करेंगे। So as you know the definition of stack, it is an order list in which all insertions and deletion made at one end. उस end को हम top से represent करते हैं। यहाँ पे top जो है वो एक variable का काम करेगा। So initially the value of top is -1. It means my stack is empty. Okay, if top is equal to -1, it means stack is empty. Where is memory? This is array. So now array is consist of 7 cells. Okay, तो आप 7 items को यहाँ पे push कर सकते हैं। Okay, now the algorithm आपको किस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। Now this is the push operation, this is the name of stack जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, and this is the value, आप किस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्शन करना चाहते हैं। Okay, so somebody want to push a value, suppose 17 initially. Okay, so at this moment stack is empty. आप देख सकते हैं इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 है, और 0 से पहले इंडेक्स नंबर दैट इज -1 जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, इस पोजीशन के ऊपर। नाउ फर्स्ट स्टेप, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, पहले टॉप को आप इंक्रीज करेंगे। इट मींस टॉप का वैल्यू राइट नाउ दैट इज a -1। -1 में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 0। ओके, इट मींस टॉप का वैल्यू यहाँ पर -1 से बढ़ के कितना हो गया, दैट इज 0। सो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर आपने उसको असाइन किया। ओके, नाउ यू कैन insert a value at this index number like this. So what is a top? Okay, what is the value of top? आप देख सकते हैं टॉप का वैल्यू जो है वो 0 हो चुका है। यहाँ पे आप क्या देते हैं, दिस इज 0, a of 0 and the value is 17. Okay, so 17 कहाँ पे जाता है, a of 0 के ऊपर, और where is a of 0? a of 0 कहाँ पर है, this one. So 17 आपका फर्स्ट लोकेशन के ऊपर जा चुका है। ओके, नाउ आफ्टर दैट अगर आप दोबारा से इंसर्शन करना चाहेंगे, पुश ऑपरेशन करना चाहेंगे, सपोज आप 9 को इंसर्शन करना चाहते हैं, 9 को पुश करना चाहते हैं अपने स्टैक में। सो टॉप को पहले आप इंक्रीज करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। सो एट दैट मोमेंट टॉप की वैल्यू कितनी होगी आपकी, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। सो टॉप की इनिशियल वैल्यू दैट इज 0, 0 plus 1 it is equal to 1. So right now top will be here. Okay, top की वैल्यू कितनी है, that is 1. Now at that moment second step आप लिखेंगे a of top. So top कितना है, that is a of 1. It is equal to the desired value. आप कौन सी वैल्यू का इंसर्शन करना चाह रहे थे, सपोज आप अगर 9 का इंसर्शन करना चाह रहे थे, so that is equal to 9. वैल्यू आप कितनी देंगे, that is 9. So a of 1 के ऊपर आपका 9 जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप को इंक्रीज करते हैं, उसके बाद में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं।
सो अगर टॉप को इंक्रीज करते हुए अगर आप 6 तक पहुंच जाते हैं, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ एरे दैट इज 7 minus 1, इट मींस योर स्टैक इज फुल. सो व्हेनेवर यू कॉल ए पुश फंक्शन, तो सबसे पहले आप ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है स्टैक पहले से ही फुल है और आप इंसर्शन करना चाहते हैं. ओके, नाउ कम टू द डिलीट ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन. सो पॉप ऑपरेशन में आपको क्या करना है? सो फर्स्ट यू सेव द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन सम वेरिएबल लाइक दिस. सो एट दिस मोमेंट अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट करेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप राइट नाउ? द वैल्यू ऑफ टॉप इज 1. अब देख रहे होंगे टॉप का वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुका है, दैट इज 1. ओके, सो एट नेक्स्ट पोजीशन, सो व्हाट इज a of 1? a of 1 का वैल्यू कितना है? a of 1 का वैल्यू है दैट इज 9. 9 किस में सेव होता है? आपका वेरिएबल x में सेव हो गया. ओके, नाउ यू कैन डिक्रीज टॉप बाय 1. ओके, टॉप को आपने डिक्रीज कर दिया, टॉप की वैल्यू जो है वो आपने 1 से डिक्रीज करके 1 minus 1 इट इज इक्वल टू 0. इट मींस आपने इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, a of 0 के एलिमेंट को राइट नाउ, एंड रिटर्न द डिलीटेड आइटम. ओके, तो जो आपने स्टोर किया था टॉप मोस्ट एलिमेंट 9, वो आप यहाँ से रिटर्न करेंगे. कहाँ पे रिटर्न करेंगे? मेन फंक्शन में, जहां से भी इस फंक्शन को आपने कॉल किया होगा. सो बेसिकली डिलीट तो यहाँ पे नहीं हुआ, हम सिर्फ अगर दोबारा से इंसर्शन करेंगे तो ओवरराइट करेंगे इस जगह पर. बट जो आपका स्टैक जो है वो डिफाइन कहाँ से है? 0 से लेकर के टॉप इंडेक्स नंबर तक. सो दैट इज द डेफिनेशन फ्रॉम 0 टू टॉप वैल्यू. Okay, let us see the algorithm. So the first is a push operation. So push operation is used to insert an element into the stack. Suppose the size of stack, yeah, size of array is max. So before pushing an element, first you check the overflow condition. So this is the step number 1. If the top is equal to maximum size of array minus 1, अगर top का value जो है वो maximum size of array minus 1 है, तो it means your stack is full. तो आप लिख सकते हैं this is stack overflow and go back without doing anything. Otherwise follow the next step, and the next step is increase the top by 1. आप top को क्या करेंगे? 1 के साथ इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1. ओके, एंड द अपडेटेड टॉप लोकेशन के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. कैसे करेंगे? वट एवर द वैल्यू जो आप यहाँ पे वैल्यू लेके आए होंगे पैरामीटर की फॉर्म में, वो एरे के अंदर इस तरीके से आप पुश करेंगे. सो दिस वैल्यू इज गो टू एरे के कौन से इंडेक्स पे जाएगा? अपडेटेड टॉप लोकेशन के ऊपर, जो आपने इससे पहले अपडेट किया था. ओके, यहाँ पे आपका अपडेशन हुआ था, दिस वन. So there are 3 steps only. Now come to the pop operation. So it is used to delete the topmost element. Okay, so before delete operation, जब भी आप pop operation को कॉल करेंगे या इस एल्गोरिथम को लिखेंगे, तो अंडरफ्लो का कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे. सपोज स्टैक पहले से ही एम्प्टी है, ऑलरेडी एम्प्टी, एंड somebody want to delete, तो वो क्या करेगा? उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं स्टैक हमारा एम्प्टी है और हमने डिलीट ऑपरेशन को कॉल किया हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड द अंडरफ्लो कंडीशन. तो फर्स्ट चेक द अंडरफ्लो कंडीशन. इफ टॉप इज इक्वल टू -1, इट मींस माय स्टैक इज एम्प्टी. ओके, एंड देन गो बैक. अदरवाइज सेव द टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो भी सबके टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको आप सेव करेंगे. कहाँ पे सेव करेंगे? एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज अ वैल्यू इज इक्वल टू a of top, and then decrease top by 1. Step number 3, decrement the stack pointer by 1 position, that is top is equal to top minus 1, and then return the deleted item into your function जहां से आपने उसको कॉल किया था. So return deleted item to function like this, return value. So these 2 operations are important, जो कि एक स्टैक को क्रिएट करने में, स्टैक को इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे. ओके, सो टुडे इज इनफ. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं. ओके, और किस तरीके से इनफिक्स में हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे. सो कुछ ऑपरेशंस जो हैं
वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।